एंशियंट सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि सिविलाइजेशन हम किसे कहते हैं, और बल्कि थोड़ा सा मैंने एक व्यू आपको दिया भी था क्लास में, शायद एक दफ़ा मैंने एंशियंट सिविलाइजेशन वर्बली थोड़ा सा पढ़ाया था। तो आज हम चलेंगे इस पे बुनियादी तौर पर जो सिविलाइजेशंस हैं, यानी हमारे पास बुनियादी 4 पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं वो हमारे इंडस का ही हिस्सा है, मैं ओल्डेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। गंधारा भी है लेकिन गंधारा इंडस के बाद की है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो एंशियंट हैं, सबसे पुरानी। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि मौजूदा पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, मौजूदा इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंसानों की जो बिल्कुल शुरू वाली सिविलाइजेशन थी उसमें 4 हैं। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। 4, इंडस, चाइनीज़, मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन। पहले पुराने शहर देख रहे हैं, पुराने शहर नहीं देख रहे हैं, उस पर जो वीडियो उन्होंने बनाई है उसको देख रहे हैं, समझे आप इसको। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं। With 2 centers at Harappa and Mohenjo-daro that belonged to 3000 BC. The life in the period is known as civilization of Indus Valley or Harappan culture. Later, archaeologists dug out many more cities. Around 250 prominent cities were found in Sindh, Lothal and Dholavira in Gujarat and Kalibanga in Rajasthan. By this excavation of Indus Valley civilization, India has been recognized as a country with one of the most ancient civilizations of the world. The civilization of Harappa and Mohenjo-daro was an urban civilization, which can be noticed from the material remains that spread in the area between the Indus Valley and Ganga Valley. The buildings were built on high ground, and the houses were made of burnt bricks. Streets of Mohenjo-daro were straight and 3 to 10 meters wide. Every house had its own well. And there was a good drainage system. Houses of rich people in Harappa consisted of 5 or 6 wide rooms, Harappa is in Punjab, whereas those of the common people consisted of about 1 or 2 rooms. The people of Indus Valley civilization were experts in town planning. The greatest example of this is the remarkable structure in Mohenjo-daro called the Great Bath or the swimming pool, which is built of bricks. It had steps on its north and south sides, and a well was used to send water into the pool. It is also an alternate arrangement to send hot water into the pool. Harappa also consisted of houses for laborers. Commonly, each city was divided into 2 basic parts,
one which consisted of government buildings which were built on the high ground. And the second one consisted of the public buildings which were built in the lowland towards the east. The hill forts were constructed on the highland of the west region. Bricks were used to construct drain pipelines in every street, and the drains of houses were linked with the street drains which carry the water out. This kind of good drainage system was found nowhere else. The drainage system of the Harappan culture is still unparalleled for that time. कराची की तो याद। अच्छा, क्या समझ आया आपको इससे? सबसे अच्छा क्या लगा आपको इसमें? हाँ, ड्रेनेज सिस्टम। जो मोहनजोदड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, उसमें टोटल 400 सिटीज़ डिस्कवर हुए हैं। बलूचिस्तान, गुजरात, सिंध, KPK, पंजाब, सबको मिला के नियर 400 सिटीज़ डिस्कवर हुए हैं। अगर आप इसको तारीखी लिहाज से देखेंगे, ये फ़ैन वहाँ एक्स्ट्रा कौन चला के है? बंद करें, ये बंद करके। इलेक्ट्रिसिटी वैसे बहुत महंगी हो गई, आपको एहतियात करनी चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पुराने सिटीज़, जो उस वक्त के सिटीज़ हैं 400 सिटीज़, उनमें जो सबसे ज़्यादा एडवांस सिटीज़ थे वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टक्सीला, या एक बलूचिस्तान में भी थे जिसे मेहरगढ़ सिविलाइजेशन बाद में हम कहते हैं। इन सिटीज़ की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत था कि ड्रेनेज सिस्टम इनका लोअर साइड पर चला जाए, अगर बारिश हो तो इनका साउथ साइड पर चला जाए, तो इस लिहाज से वो बड़ा अहमियत का हामिल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से तकरीबन 5,500 साल पुरानी तहजीब है। 5,000 साल। जैसे मैं इस चीज़ को मैंने क्लास में आपको समझाया था कि ईयर्स किस तरह बैक जा रहे हैं, ईयर्स किस तरह जो है उसको समझा जा सकता है। और जैसे इस्लाम की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 1400 ईयर्स एगो, 1400 साल पुरानी बात है। अगर हम सिकंदर आज़म की बात करें तो वो 2300 साल पुरानी बात है। अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें तो वो तकरीबन 2600 साल पुरानी बात है, यानी 2600 साल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कि 5000 साल, यानी उससे भी डबल। तो लेकिन जाहिर है उस वक्त ये डिस्कवर नहीं था, तो उस वक्त इसका इसलिए आपको कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। मसलन अरबस्तान के जो फ़िलोसोफर्स थे, यूरोप के जो फ़िलोसोफर्स थे, उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ है। ये तो तब डिस्कवर हुई जब 1922 में 21 में जब सर जॉन मार्शल यहाँ रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जो है रेलवे ट्रैक जो यूज़ हो रहा है उसमें नई नई चीज़ें डिस्कवर की गई, तो उससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये एक पुरानी तहज़ीब है। और फिर उन्होंने जो है उसकी खुदाई शुरू की और नतीजा ये निकला कि एक शहर निकल आया। और ये दोनों शहर दरियाओं के किनारों पर हैं, यानी जो हड़प्पा है पंजाब में वो दरियाए रावी के किनारे पर है, और जो मोहनजोदड़ो है वो दरियाए सिंध के किनारे पर है। तो इस किस्म की इनमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की गई। इनसे अंदर क्या क्या मिला, हमें लिटरेचर क्या मिला, कौन सी चीज़ें लिखी हुई थी, स्टैम्प्स किस तरह के मिले, स्टेचू किस तरह के मिले, वो सब मैंने आपको इसमें दिखाए हैं। ये जो दूसरी वीडियो है इसको क्लिक करें, जो सेकंड नंबर पर था ये वही है, इसको चलाएं। आप गौर से इसको देखें और इसको जो है ना आप समझें। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं आपको चीज़ें मैंने शायद शेयर कर रही है ऑलरेडी आपके ग्रुप में, और जो अगर रहती हैं तो वो भी मैं आपको शेयर करवा दूँगा।
लेकिन अभी इसको समझें और जो आपके जहन में सवाल उभर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें और सवालात पूछें ताकि हमें जो है थोड़ा आवाज बढ़ाएं The sound of mallet and chisel fills the rustic landscape of Taxila, a small town some 50 kilometers from Islamabad. Sitting by the roadside under the shade of mulberry trees, men work on stones for hours on end. Taxila may look like an ordinary town, but it's a place of historical significance. It was once the spiritual and cultural hub of one of the world's oldest faiths, Buddhism, and was home to the Gandhara school of sculpture, a treasure trove of arts and crafts. Gandhara art appeared in the region in the 1st century BC. ये गंधारा सिविलाइजेशन है। गंधारा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की सिविलाइजेशन है। गंधारा सिविलाइजेशन में बेसिकली क्योंकि गौतम बुद्धा से ज़्यादा वाबस्ता है तो ये गौतम बुद्धा के मुझे ये कितने मिनट्स की वीडियो टोटल यहाँ बता रहा है? नहीं, वो मेरे ख्याल में दूसरी वीडियो है, ये वीडियो नहीं है। दोबारा खोलें, उसमें जाएं, ये बाद की वीडियो है। मोहनजोदड़ो पे एक और वीडियो थी, इसमें दूसरी स्लाइड पर आए, आगे आए। नहीं, पीछे जाएं। कितनी वीडियोस की लिंक है इसमें, ज़रा देखें। 2 हैं। आगे करें इसको, आगे। ठीक है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करें। शायद इसमें ही है क्योंकि उसमें तफसील थी इसकी, वहाँ से कंटिन्यू नहीं हो सकती। आगे करें इसको, आगे करें, आगे। गंधारा की है, गंधारा इसके बाद की सिविलाइजेशन है। गंधारा बेसिकली जो गौतम बुद्धा का अपने नाम से बुद्धमत मजहब का जो फाउंडर था वो गौतम बुद्धा था। तो ये गौतम बुद्धा से वाबस्ता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पेंटिंग है। The sound of mallet and chisel fills the rustic landscape of Taxila, a small town some 50 kilometers from Islamabad. Sitting by the roadside under the shade of mulberry trees, men work on stones for hours on end. Taxila may look like an ordinary town, but it's a place of historical significance. It was once the spiritual and cultural hub of one of the world's oldest faiths, Buddhism, and was home to the Gandhara school of sculpture, a treasure trove of arts and crafts. Gandhara art appeared in the region in the 1st century BC. ऐसे भी मुजिस्मे हैं जिसमें वो आपको कमज़ोर नज़र आएंगे। गौतम बुद्धा यानी गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में एक आम बात है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद सिवाय मुजिस्मों को बनाने के और कोई काम नहीं किया। अच्छा, मुजिस्मे कैसे बनाते थे? कैसे बनाते थे मुजिस्मे उस वक्त? पत्थर को तराश के, मिसाल ये पत्थर है, ये मतलब इस तरह के घर वो पत्थर को तराश के बना लेते थे। एक पत्थर को तराशते, अंदर से पहाड़ है, उसमें अंदर इस तरह का महल बना लेते थे। ऐसे नहीं कि एक एक ईंट करके महल बनाते थे, उससे ईंट निकाल के बनाते थे, यूँ आप समझें।
और कोई उन्हें बड़ा पत्थर उनके हाथ लग जाए तो उसको वो इस तरह तराशते थे, तराश के उसको मुजस्मा बना देते थे, इंसान बना लेते थे उससे, और उस इंसान को भी जिसकी शक्ल बनाते थे उस जैसा बना लेते थे। उस जैसा बनाने के बाद कभी कभी उसको, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में गौतम बुद्धा कभी सेहतमंद नज़र आते थे, कभी कमज़ोर नज़र आते थे, तो वो ऐसे मुजस्मे बनाते थे कि किसी में वो सेहतमंद नज़र आए, किसी में कमज़ोर नज़र आए। अब इस वाले में आपको क्या नज़र आ रहा है? सेहतमंद, जो पीछे आपने देखा नज़र आ रहा है। चलाएं 8th century AD. Even after the civilization faded, Gandhara art was kept alive, handed down from one generation to another. Although Taxala's population today is predominantly Muslim, its Buddhist past has had a significant impact on people's lives that's evident in local handicrafts and the flourishing stone carving industry. With Buddhist influences, Taxala sculptors produce replicas of historical stonework. One of them is 37-year-old Muhammad Sadaqat, a resident of Taxala and expert stone sculptor for the past 15 years. बुजुर्गों का कहना है ना कि किसी ज़माना में, किस वक्त में ये अपना जो है ना टेक्सला, किसी ज़माना में मतलब संतराशों का शहर होता था। संतराशों का शहर मतलब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब है कि हर चीज़ का अपना अपना रंग, कलर, डिज़ाइन। जैसे तुम के टेबल होगा, अच्छा वैन ग्लास होंगे, तो जो कपड़े वगैरह होंगी, तो लंगड़ियाँ वगैरह होंगी, तो फिर जो है ना जी और बहुत कुछ, मतलब है कि स्टैंड, जो बत्ती जलाने वाले नहीं होते, स्टैंड भी होते पत्थर से, सब जो है ना। यूट्यूब में आए, यहाँ पर लिखे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इस तरह के सिंध में भी एक जगह पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सिंध में भी एक शहर में इस तरह के चीज़ें बनते हैं, बर्तन और ये सब चीज़ें जो, हाँ, हाला में, हैदराबाद के साथ जो है। इसको यूट्यूब में आए, लिंक में लिखें इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं लिख सकते? कहाँ सर्च करेंगे? यहाँ है कोने में जो ऊपर है। यहाँ लिखें इंडियन इंडस INDUS आ गया नहीं? ये इसको ऊपर क्लिक करें। नहीं, खोल दी आपने लिंक। ये कोने वाली खोले, आखिर में जो है ना, हाँ, ये इंडियाज ओल्डेस्ट मैस्ट्री, ये वाली। नमस्कार दोस्तों, साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग होकर छुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अंडरकवर रहने के लिए ये अपना नाम बदल डालते हैं और वो करने निकल पड़ते हैं जो इनका असली पैशन था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें एक अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि ये रूइंस कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था, ये डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या दिखा था। नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा बनाई गई ये ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि इन्होंने एक्चुअली में हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला था। इसके करीब 100 साल बाद 1920s में ही था कि दुनिया को और जानकारी पता चली इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के इन खंडरों को सर्वे किया। पता चला कि एक्चुअली में 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहेंजो-दारो, यानी द माउंड ऑफ द डेड।
धीरे धीरे और खुदाई करी गई तो और ऐसे खंडर मिले, बहुत सी और हिस्टोरिकल साइट्स मिले। पता चला कि इन जगहों में दफन हुआ एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए, सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस। वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2022 में हम बहुत सी बातें जानते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, स्कूल की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन दो चीजें अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे, ये लैंग्वेज है वो, क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अभी तक हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से 900 इंडिया में लाया करती है। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सिविलाइजेशंस थी जो इतनी पुरानी थी। इनके 3-4 थे, इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और चाइनीज। इन चारों में से चाइनीज सबसे रीसेंट थी, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की, लेकिन साल 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने स्टडी करी थी, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो पहले करी गई थी वो 7000 BC में करी गई थी। आज के दिन की हरियाणा स्टेट में ये पाया गया है। उस समय में ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर टूल्स पाए गए थे, पॉटरी होती हुई देखी गई थी। तो 7000 BC से 5500 BC तक का जो समय है, इसे प्री हड़प्पन फेज बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ 5500 BC के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और ट्रेड रूट्स बनाए गए। 2600 BC तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरीड घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाते थे, उनकी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होती थी, एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहाँ से ड्रेन बाहर निकल सके, सड़कों पर ढंग की नालियां। अच्छा, ये एक ही साइज की जो ईंटें हैं, मिसाल जो उन्होंने बताया 28 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, और एक ही साइज़ की जो गलियां हैं, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली एक ही साइज़ की हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेजरमेंट के लिए उनके पास कोई टूल था जिससे वो चीज़ें मेजर करते थे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल जानते थे। समझ रहे हैं ना इस बात को? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी बाज़ गलियां इस तरह भी हैं कि 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम अपनी
चीज़ें डेली मरा की जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ 10 फुट या 15 फुट को अहमियत देंगे, यहाँ 20 को, 12, 13। कुछ अल्फाज कैलकुलेशन में हमारे पास माकूल होते हैं, उनको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। मिसाल एक चीज़ आपको आप 20 रुपये में ख़रीद रहे हैं और या 19 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो आप 20 रुपये दे देंगे। 21 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो अभी 20 रुपये अगला ले लेता है। क्या मतलब है इसका कि 20 की ज़्यादा वैल्यू है, मतलब सीधी डिजिट है। तो अगर वो इस तरह बना रहे हैं 10, 15, 20, तो इसका मतलब क्या है कि वो सीधी डिजिट पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास इन चीज़ों का इस्तेमाल था और इन चीज़ों का इस्तेमाल जानते थे। एक ही साइज़ वो रख रहे हैं एक गली में और दूसरी गली में, और उस मुकम्मल गली में शुरू से लेकर आखिर तक वही साइज़ चल रही है। इसका मतलब है कि वो इंजीनियरिंग के जो बिल्डिंग इंजीनियरिंग है उससे वो वाक़ुफ़ थे। इट इज़ अबाउट 8000 ईयर्स एगो। चलाएं। होती थी, पैदल चलने की जगह साइड में पेड़ लगाए जाते थे, पब्लिक कुएं होते थे जहां से हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन्स बनाए जाते थे जहां पर लोग कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। ये देखिए ऐसे 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, स्टोन स्लैब्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स जिन पे इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदारो में तो कोई और हिस्टोरिकल साइट पर। इस पे लिखी गई इंस्क्रिप्शंस को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इनकी भाषा समझने के, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए। नमस्कार दोस्तों, साल 1827 की बात है। जेम्स पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो पहले चले आगे, चले आगे था, आगे चले करें। स्लैब्स में पाया गया वो एक्चुअली में एक यूनिकॉर्न जैसा क्रीचर था जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने लिखा कुछ और उसके नीचे हमेशा एक बड़ा सा जानवर बनाया। तीसरी चीज, ये फोटो देखकर आपको लग रहा होगा कि जहाँ पर यहाँ पर कहाँ तक था, यहाँ तक था, यहीं तक था, थोड़ा पीछे करें। हाँ यहाँ ठीक है, चले करें। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। ये देखिए ऐसे 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, स्टोन स्लैब्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स जिन पे इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदारो में तो कोई और हिस्टोरिकल साइट पर। इस पे लिखी गई इंस्क्रिप्शंस को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इनकी भाषा समझने के, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। अब दोस्तों, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं इस इंडस स्क्रिप्ट को समझने के और इतने सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो कुछ चीजें तो जरूर हैं जो हम शोर शॉर्ट कह सकते हैं। पहला, जब ये लोग अपनी भाषा को लिखते थे ये लेफ्ट टू राइट लिखने की जगह राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम जैसे हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अरेबिक जैसी भाषाएं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये इंडस स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये हमें कैसे पता चला? अगर आप इस स्टोन स्लैब की इमेज देखोगे, लेफ्ट में आप सिंबल्स देख रहे हो वो थोड़े और क्रैम्प्ड हो गए हैं। ये चीज आपने स्कूल में भी देखी होगी कि जब आप लिखने चलते हो और देखते हो कि पेज में ज्यादा जगह नहीं बची तो छोटा छोटा करके लिखने लग जाते हो, शब्दों को और पिचका पिचका कर लिखने लग जाते हो। यही चीज हमने इस इंस्क्रिप्शन पे देखी। जिसने भी इंडस स्क्रिप्ट लिखी थी उनके साथ भी सेम चीज हुई और ये लेफ्ट साइड पर हुई, तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भाषा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। दूसरा, ये देखा गया कि जहां जहां ये राइटिंग पाई गई है हमेशा ऊपर कुछ इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा जाता था और लिखने के नीचे कोई एक बड़ा सिंबल बनाया जाता था किसी जानवर का। ये जानवर राइनोसोरस हो सकता था, हाथी हो सकता था, टाइगर हो सकता था, बुल हो सकता था, लेकिन सबसे कॉमनली दिखने वाला जानवर जो इन स्टोन स्लैब्स में पाया गया वो एक्चुअली में एक यूनिकॉर्न जैसा क्रीचर था जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने लिखा कुछ और उसके नीचे हमेशा एक बड़ा सा जानवर बनाया। तीसरी चीज, ये फोटो देखकर आपको लग रहा होगा कि जहां पर हमें राइटिंग पाई गई है ये बड़ी बड़ी स्टोन के पत्थर होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही छोटे से 2.5 से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के स्टोन के ये सील्स हैं, तो कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां पर ये टेक्स्ट लिखा गया है। चौथी चीज, हिस्टोरियंस ने क्या किया कि जितने भी साइंस और सिंबल्स इन्हें इंडस स्क्रिप्ट में दिखे उन सबको आइडेंटिफाई किया, कलेक्ट कर लिया और टोटल में देखा गया कि 400 साइंस है इनकी स्क्रिप्ट। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इनकी इंडस स्क्रिप्ट में 400 से ज्यादा साइंस है।
कुछ सिंबल्स ये स्टिक फिगर्स जैसे लगते हैं, कुछ मछलियां दिखती हैं, कभी टर्टल्स, कभी क्रैब्स, कभी इंसेक्ट्स, कभी चिड़िया। लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ सिंबल्स हैं स्क्रिप्ट में, तो हिस्टोरियंस का कहना है कि ये इंडस स्क्रिप्ट एक्चुअली में एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट थी। लोगो सिलेबिक का मतलब है कि यहाँ पर सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है एक शब्द और एक साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स है, जो इजिप्शियन सिंबल्स आपने देखे होंगे, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम के हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हिस्टोरियंस एक्चुअली में इस भाषा को समझ चुके हैं। तो अनलाइक द इंडस स्क्रिप्ट, हिस्टोरियंस आज के दिन जानते हैं कि इजिप्शियन भाषा में एग्जैक्टली किस सिंबल का क्या मतलब है। और ये भाषा भी कुछ ऐसी ही है कि एक सिंबल जो है वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वल्चर का सिंबल है, ये आ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पैर का सिंबल है, ये ब साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली सारे साउंड्स की आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर मिल जाएगी और इसको देखकर आप अपने नाम को इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं ध्रुव लिखना चाहूं तो मेरा नाम इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में कुछ ऐसा दिखेगा। डी के लिए पहले एक हाथ, फिर एक विक और सो ऑन। है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। अब बात यह दोस्तों कि इजिप्शियन भाषा हम इसलिए समझ पाए क्योंकि आज से करीब 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी और उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला। एक ऐसा पत्थर जिस पर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में कुछ लिखा हुआ था और उस पत्थर पर नीचे सेम चीज एंशिएंट ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। और ग्रीक हम ऑलरेडी बोलना जानते थे, तो एक तरीके से पत्थर गूगल ट्रांसलेट की तरह हो गया, एक बड़ा प्राचीन गूगल ट्रांसलेट। एक भाषा जो हम जानते थे और एक भाषा जो हम नहीं जानते थे वो इसके जरिए सीख पाए। इस पत्थर को वैसे रोजेटा स्टोन करके पुकारा जाता है और बाद में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई और पत्थर मिले, स्क्रिप्ट्स मिली जहां पर दो भाषाएं एक जगह पर लिख रखी है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडस स्क्रिप्ट के लिए ऐसा कोई भी पत्थर या रोजेटा स्टोन नहीं मिला है, तो हमारे पास कोई बेस ही नहीं है किसी और भाषा से कंपेयर करने के लिए जिससे कि हम सीख पाए। अब इवन तो आप इनकी भाषा नहीं सीख सकते, लेकिन आप इंग्लिश जरूर सीख सकते हैं कैमली ऐप के जरिए। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी कोई शब्द आ रहा है आपके दिमाग में, या फिर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो WQ से शुरू होता। करके देख सकते हैं, जाकर देखिए। और अब दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन पर वापस आते हैं। तो खुद से इमेजिन करना कि इन शब्दों का, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। खुद ही सोचकर देखो, अगर आपको मैं कहूं यहाँ पर चाइनीज लिख दूं और आपको कहूं, मान लो चाइनीज का कोई ट्रांसलेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप जानते भी नहीं कि चाइनीज जैसी कोई भाषा होती है, और चाइनीज के सिंबल्स को आपको ट्रांसलेट करने को कहूं, क्या आप कर पाएंगे इन्हें ट्रांसलेट? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स हैं जो हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किए इस इंडस भाषा में। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे एक ऐसा वर्ड बताओ जो W से शुरू होता हो। आप कहोगे वेदर, वायर, वाटरमेलन, वाटर, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो W से शुरू होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, मुझे एक ऐसा वर्ड बताओ इंग्लिश लैंग्वेज में जो WZ से शुरू होता हो। कोई शब्द आ रहा है आपके दिमाग में? या फिर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो WQ से शुरू होता हो। नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ पैटर्न्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं, उन्हें सर्टेन कॉम्बिनेशंस में यूज किया जाता है कुछ पैटर्न्स के साथ। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में आपको WI, WA से शुरू होने वाले बहुत से वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन WZ, WQ से शुरू होने वाला कोई वर्ड नहीं मिलेगा। सिमिलरली इंडस स्क्रिप्ट में भी कुछ सिंबल्स हैं जो कुछ और सिंबल्स के बाद आते हैं हमेशा। जैसे कि जब भी ये डायमंड शेप का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद हमेशा एक सिंबल आता है जिसमें दो पैरेलल लाइनें लगी होंगी, लेकिन कभी भी इसके बाद ये स्टिक फिगर वाला सिंबल नहीं आता। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिंबल है ये जार शेप्ड सिंबल जो है। और इंटरेस्टिंगली ये देखा गया है कि ये सिंबल हमेशा इंडस की भाषा में हमेशा टेक्स्ट के एंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हो सकता है ये इनका कोई फुल स्टॉप हो या पूर्ण विराम हो। एक खास डिस्कवरी अब ये हुई दोस्तों कि मेसोपोटामिया में भी इंडस की स्क्रिप्ट पाई गई, कुछ पत्थरों पर लिखी हुई। मेसोपोटामिया की जो हिस्टोरिकल साइट्स है वो आज के दिन के इराक और ईरान के एरियाज में। हम ये जानते हैं कि वहां पर कोई और भाषा बोली जाती थी, लेकिन वहां पर भी अगर हमें इंडस की स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है पत्थरों पर, इसका मतलब ये है पहली चीज तो कि इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच में ट्रेडिंग चलती थी, लोग इधर उधर आते जाते रहते थे। दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं इन दोनों जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी हुई पाई गई। लेकिन तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इंडस स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में पाई गई
जो हमने पैटर्न इंडस स्क्रिप्ट में देखा था कि ये जार वाला सिंबल एंड में आता है हमेशा, लेकिन मेसोपोटामिया में जो मिला वहां पर देखा कि ये जार वाला सिंबल 2 बार लगा रखा है एक के बाद एक, लेकिन किसी भी इंडस वैली की साइट पे इस सिंबल को 2 बार नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या मिस्ट्री है ये, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हिस्टोरियंस का कहना है इसके पीछे रीजन है कि एक्चुअली में मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग इंडस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी भाषा को लिखने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सब समझना, तो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। हम हिंदी को लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये जो क ख ग वाली स्क्रिप्ट। इंग्लिश को हम लिखते हैं, जैसे हम उर्दू को अरबी में लिखते हैं, स्क्रिप्ट हमारे पास कौन सा है? उर्दू तो हम लिखते हैं कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहा हूँ, ठीक है, तो लेकिन वो किस भाषा में लिखते हैं? अरबिक में। सिंधी अरबिक में लिखा जाता है, अरबिक और पर्शियन में। जैसे हमारा कौमी तराना है तो वो अरबिक, पर्शियन और उर्दू का मिक्सचर है, स्क्रिप्ट वो लिया गया है उससे। उसमें तो खैर ज़ुबान भी वो इस्तेमाल है, लेकिन स्क्रिप्ट की बात हो रही है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, उर्दू में लिखते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो आपने वो इस तरह लिखा, लेकिन अगर आप उसको लैटिन में लिखेंगे तो आप KAHAN लिखेंगे, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लैटिन स्क्रिप्ट है, ये इंग्लिश का अपना स्क्रिप्ट नहीं है। इंग्लिश ने जो स्क्रिप्ट लिया हुआ है वो लैटिन लिया हुआ है, हमने उर्दू में जो लिया हुआ है वो अरबिक लिया हुआ है। तो यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज थी, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिया था वो इंडस वैली का लिया था। समझ गए आप इस बात को?